خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیمور بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا آزمائش, اور اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے تو میں چاہوں گا انشاءاللہ مزید ان سے گفتگو کریں. جی بلال بھائی, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارا جو گفٹنگ پارٹنر ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں, بہت ضروری ہوتے ہیں. ہمارے پورے سیگمنٹ ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں مختلف گفٹس پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں النور ابایا کے, جو ان کے بہت خوبصورت ورائٹی کے اندر ابایاز موجود ہوتے ہیں. آپ ان کا ٹک ٹاک پیج النور ابایا کے نام سے ضرور وزٹ کریں. مختلف رینج کے ابایا ہوتے ہیں, مختلف موقع کے حوالے سے ابایا ہوتے ہیں, آپ ضرور دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے. اور اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں ٹرو پاور کے, اور ٹرو پاور سولر انرجی ایک بہت بڑا نام ہے. مختلف پروڈکٹس ان کی ہوتی ہے الیکٹرانکس کے حوالے سے, آپ ضرور ان کو وزٹ کریں. سولر کے حوالے سے ان کے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں, بہت اچھی رینج میں پروڈکٹس ہوتی ہیں, اور مارکیٹ کمپیٹیبل پرائسز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہماری سحری کے لیے جو گفٹنگ پارٹنر ہیں موسیٰ بریانی اینڈ قورمہ, بہت لذیذ ڈیلیشیس ذائقہ ہے ان کا. یہاں پر بھی ہم سحری انہی کی کر رہے, ان کی توسط سے ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت پسند کرتے ہیں لوگ یہاں پر. اور ان کا پلاؤ, بریانی اور قورمہ تینوں ہی لاجواب ہے. طارق روڈ پر ان کی آؤٹ لیٹ ہے, ضرور وزٹ کریں. اور بلال بھائی ہمارے جو چمکتے ستارے کے سیگمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون حاصل رہتا ہے وہ ٹی ایم سی اورنگی حاجی جمیل ضیاء صاحب کا رہتا ہے. ہم آپ کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب, ایک تو آج کا ٹاپک چل رہا تھا, اس کے علاوہ میں نے جو انٹرو دیا تھا خاص طور پہ 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے. بڑی فضیلتیں آپ کی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. کچھ آپ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتانا چاہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی, ان کا کردار کیسا تھا؟ کیا آج ہم ان کے کردار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, بہت آج جو شخصیت کا یوم ولادت ہے امام حسن مجتبی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ماشاء ان پہ درود پڑھیں گے تو ہمارا درود بھی مکمل ہوگا. بے شک. اور یہ روایت میں یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم حیات تھے. آپ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو ایک آپ نے پوچھا کہ آپ کس کو چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. آپ ابراہیم کو چاہیں گے ابراہیم آپ کے ساتھ رہے, یا حسن و حسین آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے حسن حسین جو ہیں میں وہ اس کو میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں. اس کے کچھ دن بعد آپ کے اپنی اولاد ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو مطلب پوچھنے ہی آئے تھے, اب اللہ کی طرف سے اذن ہے کہ کس کو لے جانا ہے. تو آپ نے اپنے حسن اور امام حسین کو آپ نے سلیکٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ اپنی نسل کو بڑھانا ہے. بسل اگر چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو تھے ان کو بھی وہ آپ رکھ سکتے, لیکن آپ کی محبت, آپ کی انسیت ان بچوں کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ اور ان کے والد کے ساتھ وہ نسبت اتنی زیادہ تھی, ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ ایک ساتھ مل کے ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ خطبہ مجھ کو یاد آ رہا ہے, وہ روایت یاد آ رہی ہے, سلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اور یہ میرے نبی کا ہی قول ہے, جب نا خطبہ دیا جائے تو سننے والا بھی اور سنانے والا بھی کوئی غیر ضروری امور میں ملوث نہ ہو, یہ بھی گناہ ہے. اس نبی کا قول ہے. اور سلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دروازہ وہاں سے پردہ ہٹتا ہے, امام حسن امام حسین لال کرتے پہنے ہوئے سامنے سے ظاہر ہوتے ہیں. خطبہ فرما رہے ہیں لیکن توجہ ان کی طرف ہے. وہ لڑکھڑاتے ہوئے کہ چھوٹے ہیں دونوں, لڑکھاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. سر نے فرمایا, خطبہ روکا اور ان دونوں کو اٹھایا, اپنی گود میں آگے بٹھا لیا, اور پھر فرمایا کہ اللہ کے درست فرمایا ہے کہ جو اولاد ہے نا وہ بڑی آزمائش ہے. کیا فرمایا کہ مجھے یہ میرے بچے لڑکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور میرا دل یہ کہ گر نہ جائے, تو میں نے اپنا خطبہ روکا اور اٹھا کے میں نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا. ارے جس کے لیے نبی خطبہ روک دیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور ان کی عظمت کیا ہوگی. ارے وہ امام حسن تو وہ ہیں جو کہ ایک معیار ہے صلح کا. صلح کا معیار انہوں نے پیدا کیا, اپنی خلافت کو چھوڑ کے
दूसरे खिलाफत तस्लीम करके बता दिया, अपने नबी की अपना बात हक को छोड़ दिया। दुरुस्त फरमा दिया कि मेरे वाह, उनके नाना ने कहा था कि हसन जो है 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा, और उसने अमली तौर पे उसको जाहिर किया। आपकी शख्सियत बेमिसाल है। तो आज हमारे सही, नौजवान माशाल्लाह। फिर इस किरदार को अपनाते क्यों नहीं है, उनकी शख्सियत हमारे किरदार में नजर क्यों नहीं आ रही है? मसला ये है कि आज हमका मुसलमान जो है ना, वो अकीदत में ज़्यादा है, अमल में कम है। बेशक जबकि रसूल ने फरमाया कि अकीदत और मोहब्बत उस वक़्त मौक़द होती है जब उसके अमल में पूरे। जब मैं छोटी सी मिसाल का टाइम हो तो मैं जी बिस्मिल्लाह। मौलाना रूम ने एक छोटी सी मिसाल दी है लैला और मजनू की। जब लैला मजनू के उससे प्यार करती थी, मजनू दावा था मजनू का मैं बहुत प्यार करता हूँ लैला से। लैला ने भेजा मजनू के पास अपने खासियत को, जाओ पूछो कितना प्यार करती हो। तो बोला मैं लैला से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो लैला से करता हूँ, किसी से नहीं करता। लैला के पास जवाब दिया, बोला लैला ने कहा नहीं कच्चा है, तो अभी बिल्कुल कच्चा है। वो बोले सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बोले बिल्कुल कच्चा है। कुछ अर्सा गुजरा, फिर दोबारा अपने खासियत को भेजा, जी भाई पूछो कि लैला से कितना प्यार करते हो। तो बोला कितना प्यार करता हूँ कि जान लैला पे दे दूंगा। उसने आगे दिया जवाब दिया कि लैला ये कहती है, बोले अभी भी कच्चा है। तो बोले अभी भी कच्चा है, बोले जान दे दूंगा। ये असल में उस मामले मोहब्बत और की बात की मिसाल दी है मौलाना रूम ने ना। फिर कुछ अर्से बाद फिर भेजा, भैया पुश किया हो मजनू क्या कहता है। खासियत गया, पूछा मजनू मुझे लैला ने भेजा है, पूछा पूछती है कितना ही मोहब्बत करते हो मुझे। मजनू जवाब देते हैं लैला, कौन लैला भाई, लैला तो मैं हूँ। लैला तो मैं हूँ। वो भाई क्या मतलब कि वो थे ना उसकी मोहब्बत में मुस्तगरक हो गया कि उसने अपने आप को उस पर ढाल लिया। तो ये तकाजा ये हमने आज मोहब्बत का दावा करते हैं, हम ताल्लुक का दावा करते हैं, हम उसको अपनाते नहीं है। ये बात हम नबी के साथ करते हैं, ये हम उनके अहले बैत के साथ करते हैं, वो इनके सहाबा के साथ करते हैं। हम नारे बहुत हमारे बुलंद होते हैं लेकिन हम अमल में बहुत कच्चे हैं। सही, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात की। और इंशाल्लाह आज हम दोबारा से एक सवाल और इस सेगमेंट में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, हमारे पास हैं सलमान अहमद माशाल्लाह से। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है ब्रेक से पहले हमने इनका ब्रांड है, इन्होंने बताया कि मैं अपनी जो ब्रांड का नाम है वो मैंने अपनी बेटी के नाम से रखा माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनको उससे बहुत नवाजा भी है। हमने क्रीम पे बात की, जैसे कि जो नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं, हमने क्रीम पे बात की और उसके साथ सीरम पे बात की। वो ये कि जो इनकी क्रीम है वो पिगमेंटेशन कवर करती है, वो एक्ने कवर करती है, और वो फेयरनेस क्रीम है। उसको आप सीरम के साथ मिला के यूज़ करें तो आपका कलर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि उसको आपने 7 डेज कंटिन्यू यूज़ करना है स्टार्ट में। देन उसके बाद आपको लगे कि हाँ आपकी स्किन का एक 1 टोन हो चुका है, तो फिर आप उसको ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। और जो हजरात जो नाजरीन हमारे बहुत सारे होते हैं लड़के स्पेशली कि वो क्रीम को अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए सौंफ भी है, तो आप सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने सौंफ से अच्छे तरीके से फेस वॉश करना, उसके बाद आपने क्रीम यूज़ करनी है। और अगर आपको क्रीम नहीं यूज़ करनी तो आप डेली कम से कम 3 दिन तो दिन में 3 टाइम तो आप अपना फेस वॉश करें सौंफ से, इंशाल्लाह उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अब हम आते हैं आपके शैम्पू पे इंशाल्लाह। तो मुझे बताइए कि शैम्पू जो है हमारा वो क्या मद्देनज़र रखते हुए आपने शैम्पू पे वर्क किया है? डैंड्रफ पे किया है, या बाल जो हेयर फॉल होता है उस पे आपने किया है, या बहुत सारे बालों को वॉल्यूम, अक्सर वॉल्यूम के लिए लोग करते हैं, और बहुत सारे शैम्पू होते हैं कि जो वक्त से पहले जिनके बाल वाइट हो जाते हैं उस पर भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा हर्बल हेयर ऑयल था हरम का ना, ठीक है। तो वो जो बेसिकली हमारा है वो गिरते बाल, लंबे बाल, खुश्की, सिल्की, इन तमाम चीज़ों के लिए था। सही। लेकिन हमारे पास जो कस्टमर आते थे कि इस ऑयल के साथ हम शैम्पू कौन सा यूज़ करें, ओके, तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के थे लेकिन वो सूट नहीं कर पाते थे। बिल्कुल ठीक। तो हमने हरम का अपना हर्बल हेयर ऑयल जो है ना, तो फिर हम एक काम करते हैं ना, फिर हम ऑयल से स्टार्ट लेते हैं जी, ताकि और फिर उसकी निस्बत से हमें पता चलेगा कि हम शैम्पू पे हमने क्यों आए। तो ऑयल से स्टार्ट करते हैं। ऑयल किस चीज़ को देखते हुए आपने स्टार्ट करवाया? ऑयल अक्सर ये होता है, वही बात जो शैम्पू में चीज़ें होती हैं, गिर रहे होते हैं बाल, और 2 मुंह के बाल बहुत हो जाते हैं, ड्राई बहुत हो जाते हैं, इस जी असल शैम्पू का मसला नहीं आता, असल ऑयल का आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तभी मैंने कहा शैम्पू ऑयल से स्टार्ट लेते हैं। जी, असल आपका ऑयल अच्छा होगा, फिर आपको उसके लिए शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही, जी। तो फिर आपको बेहतरीन उसका जो है ना रिजल्ट नज़र आएगा। जी, हमारा हेयर ऑयल जो है गिरते बालों के लिए, लंबे बालों के लिए, खुश्की के लिए। ओके, अच्छा, इसमें खालिश जड़ी बूटियाँ, इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, बालझड़, हंसराज और नीम जो है ना,
इसमें ये सब कुछ शामिल है ऑर्गेनिक पे हैं सारी जी। और इसमें जो है ना तेल, तिल्ली, सरसों, खोपरा, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। ओके, सही सही, बिल्कुल ठीक। आप हमारे 18 दफ़ा आप हमारे हेयर ऑयल को यूज़ करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो 18 दिन बाद आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वो 18 दफ़ा जो है वो किस तरह से वीक्स में करना है या डेली करना है? डेली लगाना है आपको। डेली आप लगाएंगे तो 18 दफ़ा आप महीने में आप जब लगा लेंगे तो आपको जो है ना उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और हरम किया जो ऑनियन शैम्पू है वो आप जो है ना उसको बेहतरीन उसका ठीक है। रिजल्ट अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेली पे जब हम अक्सर शैम्पू पे आते हैं ना, जी। तो नाज़रीन आपको भी पता होगा कि लाइक इतने बिजी स्केड्यूल में, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो डेली बेस पे ऑयलिंग कर नहीं सकते। जी। तो अगर हम डेली बेस पे जाते भी हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम, कितने घंटे हमें उसको रखना है सर? इसको कम से कम 8 घंटे आपको लगाना है। 8 घंटे। 8 घंटे आपने इसको ठीक है, लगाना है। सही। फिर तो ये लगा के सो सकते हैं सो भी सकते हैं आप। अगर आपका बिस्तर ख़राब ना हो उसके बाद? जी। अच्छा, मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि हमारा ऑयल जो है ना एज अ शाइनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप हेयर टॉनिक भी यूज़ करते हैं अच्छा, ना, बिल्कुल ठीक, सही। तो मतलब आम ऑयलों की तरह हमारा ऑयल नहीं है कि चिपचिपाहट होती है या बाल आपके जिस तरह नज़र आए कि ऑयल नज़र आ रहा है, इस तरह नहीं है। अच्छा, फिर तो उसके लिए तो एक चीज़ ये भी है ना नाज़रीन, जैसे अक्सर हम लड़कों की अगर बात करते हैं तो लड़के अक्सर जो ज़्यादा होते हैं वो लाइक शैम्पू वॉश करने के बाद वो कुछ ना कुछ हल्का ऑयल वॉयल लगाते हैं। जी जी। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, क्योंकि मेरे अपने भाई भी है तो तभी मुझे पता है। तो ये तो बेस्ट है कि आप ये लगा के ये इसको टोनर के पे आप टोनर यूज़ के कर तौर पर सकते आप हैं। यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जी। शैम्पू का बताऊं फिर आपको मैं? शैम्पू का हाँ बिल्कुल, ऑयल का तो हमारा हो गया। अब मुझे बताएं, हम शैम्पू पे आते हैं। अगर आप ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, आपकी बहुत ज़्यादा खुश्की है, तो हमारा जो है ना हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा ये है, कवर कर रहा है। और गिरते बालों के लिए हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट और मिला ये है भी इसका। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जी हर जी किसी जी के जी साथ, जी जी बिल्कुल। हर किसी के साथ ये मसला ये चल रहा है। गिरते बालों के लिए हमारा बहुत अच्छा ये आपको जो है ना कवर कर जाएगा। लेकिन 18 दफ़ा आपने इसको महीने में आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। शैम्पू भी, ओके, ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिकली जो बालों का मसला होता है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है और फेस के ऊपर तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है, बालों पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। तभी हम 18 दिन का आपको कहते हैं कि आप 18 दिन आप इसको लगाएंगे तो अक्सर आपने ये सुना है कि डेली बेस पे शैम्पू यूज़ करना भी बालों के लिए नुकसानदेह होता है। असल हमारे शैम्पू में केमिकल्स इस तरह के नहीं है कि आपको जो है ना नुकसान करे। ओके, तो ऑर्गेनिक पे है ना सारी जी, चीज़ें? ऑर्गेनिक पे ना अगर आप 3 साल 4 साल के बच्चे को भी आप सर वॉश करेंगे ना, इससे तो कोई नुकसान नहीं होगा हमारे को। ओके, ठीक है। और इसकी क्या क्वांटिटी होती है? जैसे अगर एग्जांपल हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, अगर वो एक बॉटल बाय करते हैं जी। तो उसमें क्या 18 दिन निकल जाते हैं या उससे ज़्यादा निकल उससे जाते ज़्यादा हैं? क्या निकल जाते क्वांटिटी होती है? वैसे तो हमने क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड रखा था 200 ml ना, 200 ml, ठीक लेकिन है, हम सही। उसको जो है ना 240 250 हम एक्स्ट्रा देते हैं ओके, ठीक है, ताकि जो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे पास ब्रांड था हरम, और हमने उस पर क्रीम पे बात की, सीरम पे बात की, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा शैम्पू भी है, जो कि जैसे कि आपने अगर हमारी लास्ट ट्रांसमिशन देखी होगी सीज़न 2, तो उसमें माशाल्लाह से ये तशरीफ़ लाए थे और हमने बात की थी क्रीम और सीरम पे, जिसमें इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये लॉन्च करेंगे शैम्पू। तो माशाल्लाह से वो कर चुके हैं और उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं वो भी आपको बता चुके हैं कि 18 दिन आपको उसको यूज़ करना है। वो भी इसलिए उन्होंने ये बात वाज़ेह की क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जज्बाती होते हैं ना थोड़े से, लाइक 2 दिन 3 दिन 4 दिन चीज़ यूज़ करते कहते हैं नहीं यार इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो इसलिए उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि आप अगर शैम्पू लेते हैं और ऑयल भी लेते हैं तो उसका 18 दिन यूज़ करें। यूज़ करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और फिर इंशाल्लाह और भी चीज़ें प्रोडक्ट हैं आपके या अभी इतना ही है? अभी मेरी स्किन पॉलिश लॉन्च कर रहा हूँ तो अभी वो अनाउंसमेंट मेरा ख्याल हमारे सीज़न 4 में करेंगे, है ना? नहीं इंशाल्लाह पहले कर देंगे। पहले कर देंगे। चले ठीक है, इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं हम। और हमारे साथ माशाल्लाह से स्कॉलर मौजूद हैं, जैसे कि आपको पता है कि और तैमूर भाई ने उनसे जो सवाल किया था वो क्लियर हो गया था जवाब उसका। ठीक है, तो अब हम सवाल ऐड करते हैं और सवाल ये है कि एक माँ है और वो ये कह रही हैं कि मेरी बेटी है बाहर के मुल्क में और वो मैरिड है, अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, ठीक है, और मेरा जितना भी एक्सपेंस है वो भेजती हैं बाहर से और मेरी कोई इनकमिंग नहीं है। तो मुझे बताइए क्या मुझ पे ज़कात वाजिब है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़कात का जो मसला है ना वो इनकम होने से या अखराजात से नहीं है, वो सेविंग्स से है। सही। आपके पास सेविंग्स, जैसे हमने कहा सारे, आपके पास कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कैश वगैरह आपके पास इस सूरत के अंदर है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर या ज़ायद हो तो वो ज़कात के निसाब में आती हैं। अगर उनके पास इतना माल नहीं है, कुछ भी सोना, चाहे वो जेवर ही हो चाहे टॉप्स ही हों, कि आज खाली टॉप्स भी वगैरह भी हों और कुछ थोड़ा कैश हो तो मिला के एक वैल्यू बच जाती है। 5.5 लाख से ऊपर तोला सोना है और चांदी भी आजकल काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो अगर थोड़ी चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं मिला के 52.5 तोला चांदी की मकदार है तो बिल्कुल उनको ज़कात देनी होगी। अगर नहीं है तो नहीं देनी होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके खर्चे देने का, तो
देखें जो जब निसाब आप बनाते हैं ना ज़कात का, उसमें जो आपका करंट खर्चा होता है वैसे ही माइनस कर देते हैं। सही, बिल्कुल। वो आप मिसाल का आप आज ज़कात कर रहे हैं तो अभी आपके बच्चों के एक्सपेंसेस हैं, स्कूल के हैं, आपके ग्रोसरी है, तो आप उसे माइनस कर देंगे। उस कैश में जो आपके पास है वो आप उसे माइनस कर देंगे, तो वो तो वैसे भी जो मेरे में नहीं आती, वो जो इस्तेमाल हमारी हो गया वो इस्तेमाल हो गया। तो चाहे वो आप किसी ने आपको दिया, आपकी फैमिली मेम्बर ने दिया, या आपने खुद उसको जनरेट किया अपने इनकम के जरिए, जो इस्तेमाल हो गया, फिर उसके सेविंग्स के ऊपर सारी आप पे डिपेंड करता है। वो आपकी 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो आप साहिब ज़कात हैं, आपको ज़कात देना ज़रूरी है। नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। चाहे अगर अभी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप आज दें, अगले साल दें, लेकिन देना है। वो अल्लाह का कर्ज है, वो अल्लाह का कर्ज अल्लाह ही माफ़ कर सकता है, और बंदा माफ़ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। बेशक बेशक, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आपको जवाब मिल गया होगा। और मुज़म्मिल भाई हमारे साथ हैं। मुज़म्मिल भाई, मुझे बताएं कि माशाल्लाह कि जैसा कि आप प्रोफेशनल हैं, आप टीचिंग करते हैं और डिफरेंट दिन में बहुत आना जाना होता होगा, हमारे भाई भी हमारे साथ हैं। मुझे बताएं आप किस तरीके से अपने बाल और अपनी स्किन केयर करते हैं? देखिए, मैं अगर सच बोलूँ तो सच कोई इतनी स्किन केयर नहीं है, ना ही बालों की इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा केयर है। नॉर्मली जो शैम्पू होते हैं वो उसी तरीके से कोशिश ये होती है कि फेस भी कवर रहे और जो है बाल भी कवर रहें। तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हेलमेट, क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है गर्द व गुबार का, तो उससे बड़ा मसला होता है कि अगर आज नहा लिया और आज हेलमेट नहीं पहना तो फिर तो कल नहाना फ़र्ज़ है, तो ये वाला मामला हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्किन की अभी मैं थोड़े टाइम से केयर कर रहा हूँ, वो एक फ़ेस वॉश है, वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो किसी ने रिकमेंड किया था तो वो बस यूज़ करना, थोड़ी सी बेहतरी है स्किन की, वरना मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ऑयली स्किन की है, कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उससे थोड़ी बहुत ड्राई रहती भी है। बाकी हेयर के लिए तो नॉर्मल शैम्पू ही यूज़ कर रहा होता हूँ। ऐसे अभी तक कोई मैंने हर्बल वगैरह ट्राई नहीं किए। अच्छा, सही। जैसे कि सलमान भाई क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे लग रहा है मुज़म्मिल भाई के हल्के हल्के वाइट बाल भी शुरू हो बहुत गए। ज़्यादा हो गए बिलाल बहुत भाई। ज़्यादा हो गए। जब आपने ये बात कही थी तो मुझे उस टाइम ख्याल आया हाँ, था तो यार। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या कहना चाहेंगे, ये शैम्पू और जो ऑयल है ये करेगा? जैसे पहले मैं बात करूँ, इन्होंने फेस वॉश का कहा कि है ना। अच्छा, मैं अपना फेस वॉश का बताता चलूँ कि हमारा हरम का जो राइस स्किन जो है ना फेस वॉश है, अच्छा उसमें वाइटनिंग भी है, प्लस स्क्रब भी है, और फिर मेंथोल भी है, क्योंकि हमारे सर्दी इतनी आती नहीं है, ज़्यादा गर्मी रहती है। अच्छा, गर्मी की वजह से आपके जो है ना बहुत सारे स्किन जो है ना डैमेज और एक्नी निकल जाती है, तो वो भी हमारा जो है ना फेस वॉश कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हमारा जो हेयर ऑयल है, जैसे आपने वाइट बाल की बात करी, हमने इस तरह की जड़ी बूटियाँ डाली हैं कि वो जो है ना वाइट को ब्लैक करें। सही, ठीक अच्छा। है। लेकिन अभी इतना खास मतलब समझ लें कि 20% उसका रिजल्ट आया कि 50-80% आता, तो हम उस पर लिखते हैं। अभी हमने लिखा इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी जब तक रिजल्ट बेहतर नज़र नहीं आएगा तब तक हम लिख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह सेगमेंट आपका बहुत अच्छा रहा। जी जी। और जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए, बहुत बहुत हमारे नाज़रीन को बहुत अवेयरनेस आई क्रीम जी, से जी। लेके बालों से, शैम्पू से। और इंशाल्लाह अगर हमारे सवाल कुछ ऐड होते हैं तो फिर डेफिनेटली हम आपकी तरफ आएंगे। और जज़ाकल्लाह, इनसे एक जी, सुनते हैं, हमारे साथ मनकबत सुनते मौजूद हैं, हैं फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह ब्रेक में इनकी खूबसूरत आवाज़ के साथ। शुएब अत्तारी साहब मौजूद है हमारे साथ। हम चाहेंगे कि इमाम हसन इस्लाम के मुताबिक कोई आप मनकबत पेश करें। सरवरों कोनो मका की है अता प्यारे हसन, जानशी हजरत शेरे खुदा प्यारे हसन, जिनको कंधों पर बिठाया करते थे शाहे रसुल, जिनको कंधों पर बिठाया करते थे शाहे रसुल, है वही महबूब दावर की रज़ा प्यारे हसन। सरवरों कोनो मका की है अता प्यारे हसन, जानशीन हजरत शेरे खुदा प्यारे हसन, जिनको आका ने कहा खुल्दे बरी का ताजदार, जिनको आका ने कहा खुल्दे बरी का ताजदार, इंतिखाब मुस्तफ़ा पर है ज़िया प्यारे हसन, इंतिखाब मुस्तफ़ा से पुरज़िया प्यारे हसन। सरवरों कोनो मका की है अता प्यारे हसन, जानशीन हजरत शेर खुदा प्यारे हसन, जिनके लब को चूमते थे सर्व
सरवर दुनिया दिए, जिनके लब को चूमते थे सरवरो दुनिया दीन। ऐसे प्यारे खुशनुमा हो, ऐसे प्यारे खुशनुमा हो, एक दिया प्यारे हसन। ऐसे प्यारे खुशनुमा हो, एक दिया प्यारे हसन। सरवरो कौनो मका की है अता प्यारे हसन। जानशीन हजरत शेर खुदा प्यारे हसन। सुभान अल्लाह शेख साहब।